السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت نہم جغرافیہ لیسن نمبر 6 کا دوسرا حصہ لے کے حاضر ہوئے ہیں، پراپرٹی آف سی واٹر، سمندر کے پانی کی خصوصیات۔ ہم نے سمندر کے پانی کی پہلی خصوصیت یعنی درجہ حرارت کے متعلق پہلے پارٹ میں پڑھا تھا۔ اس حصے میں ہم نے دو خصوصیات کو لیا ہے، یعنی سمندر کے پانی کی کثافت اور سمندر کے پانی کی نمکینیت۔ دونوں خصوصیات کو اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نمکینیت کیا ہے۔ نمکینیت کے لیے ایک تجربہ آپ کی کتاب کے اندر دیا گیا ہے کہ نمکینیت کہ اگر اب سادے پانی میں نمک گھول دیں، یعنی نمک کی شرح اس میں بڑھ جائے گی۔ نمک جس میں نہ وہ پانی میٹھا پانی کہلاتا ہے، لیکن اس میں نمک کی مقدار شامل ہو نمکین ہو جاتا ہے یا کھارا کہلاتا ہے۔ تو ہم نے ایک برتن میں نمک کا گھول تیار کر لیا ہے، اس کو 3 برتن میں 3 کٹوری میں آدھا کٹوری پانی بھر کر کے رکھیں گے۔ لیکن کرنا یہ ہے کہ ایک کٹوری کو ہم جالی دار ڈھکن سے ڈھک کر کے کھلے آسمان میں یعنی سورج کی دھوپ میں رکھ دیں گے، اور 2 برتن ہم گھر میں رکھیں گے، اور ان دونوں برتن میں ایک برتن میں وقفے پر سادہ پانی ملاتے رہیں گے اور دوسرے برتن کو خالی رکھیں گے، کوئی پانی نہیں ڈالیں گے، صرف سائے میں رکھیں گے دونوں برتن کو، ایک میں پانی ملاتے رہیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد ہم دیکھیں، 3 کٹوری کو اکٹھا کریں تو ہم دیکھیں کس برتن کا پانی زیادہ نمکین ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ جو سورج کی دھوپ میں رکھا ہوا برتن کا پانی تھا وہ سوکھ جائے گا اور اس میں نمکینیت نمک کی مقدار باقی رہ جائے گی، اور وہ اگر پانی بچا ہوگا تو زیادہ نمکین ہوگا۔ اس کے علاوہ جس برتن کو ہم نے سائے میں رکھا تھا اور اس میں پانی نہیں ملایا تھا، اس میں نمکینیت تیسرے برتن سے زیادہ ہوگی، اور تیسرے برتن میں جس میں ہم نے پانی ملایا تھا اس میں سب سے کم نمکینیت ہوگی۔ تو سب سے زیادہ نمکینیت جو ہے ہماری اس پہلے برتن میں ہوگی جو دھوپ میں تھی، سب سے کم نمکینیت اس میں ہوگی جس میں ہم نے پانی ملایا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ برتن میں نمکینیت ہوگی جس میں ہم نے پانی نہیں ملایا۔ تو عزیز طلبہ، تو نمکینیت کہتے کسے ہیں؟ نمکینیت کہتے ہیں فی 1000 گرام سمندر کے پانی میں موجود نمک کی مقدار کو۔ نمکینیت کہتے ہیں 1000 گرام پانی میں کتنا نمک موجود ہے، کتنا گرام نمک ہے، وہ نمکینیت کہلاتا ہے۔ سمندر کی اوسط جو نمکینیت ہے 35 فی 1000 ہے۔ 35 فی 1000 اس کو لکھنے کا طریقہ اس طرح ہے جیسے ہم فیصد لکھتے ہیں، فیصد میں 1 نقطہ لکھتے ہیں، لیکن نمکینیت کے لیے نیچے کی طرف 2 نقطہ لکھیں گے، یعنی 35 فی 1000، فیصد سے کے بعد 1 نقطہ اور 35 فی 1000، یہ لکھنے کا طریقہ ہے۔ 35 فی 1000 ہے اوسط نمکینیت۔ زمین سے گھرے سمندر اور استوائی علاقوں میں نمکینیت جو ہے زیادہ ہوتی ہے، قطبی علاقوں میں کم ہوتی ہے، یعنی نمکینیت کا جو اثر ہے حرارت پر، حرارت سے بہت زیادہ متاثر کرتی ہے نمکینیت کو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس نقشے کو، اس پر کچھ سوالات ہیں، اور اس کے بعد اس کی وجوہات کو سمجھیں گے۔ 6.9 یہ آپ کی کتاب کا نقشہ ہے۔ خط سرطان اور خط جدی کے قریب نمکینیت کتنی ہے؟ تو یہ خط سرطان اور خط جدی یعنی کہ ان علاقوں میں 23.5 درجہ شمال اور 23.5 درجہ جنوبی علاقوں میں نمکینیت کتنی ہے یہ پوچھا گیا ہے۔ تو یہ تقریباً 35-36 فی 1000 نمکینیت ہے یہاں پر۔ سب سے کم نمکینیت کس علاقے میں ہے؟ سب سے کم نمکینیت بحیرہ بنگال میں 32 فی 1000 ہے۔ وجہ اس کی آگے ہم پڑھیں کہ وہاں تازہ پانی شامل ہوتا ہے خاڑی میں۔ کس بحر اعظم میں 37 سے زیادہ نمکینیت پائی جاتی ہے؟ 37 سے زیادہ نمکینیت کون سے بحر ہے؟ 37 سے زیادہ تو کہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے، البتہ کچھ یہ بحر الکاہل میں کہیں 37، جیسے اس حصے میں یہاں پر 37 درجہ نمکینیت دکھائی گئی ہے اس حصے میں، اور اس حصے میں 37 فی 1000 دکھائی گئی ہے، لیکن 37 سے زیادہ کہیں نہیں ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، عالمی سطح پر نمکینیت میں فرق کی وجہ اور نمکینیت میں فرق کی اسباب تو ہم آگے پڑھیں گے۔ فرق کے اسباب یہ ہو سکتے ہیں کہ وہاں جو ہے ٹمپریچر میں فرق کی وجہ سے، دیکھیے سب سے اہم سبب نمکینیت کا جو ہے فرق کیوں پایا جاتا ہے، کم یا زیادہ کیوں ہوتی ہے، اس میں 2 چیزیں خاص طور پر
ज़्यादा अम्ल तबख़ीर यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो तबख़ीर की शरह यानी पानी भाप बन कर के ज़्यादा उड़ेगा। इसी तरह से मीठे पानी की शमूलियत, बारिश का जो पानी है दरियाओं के ज़रिए समंदर में शामिल होता है। मीठे पानी की शमूलियत और अम्ल तबख़ीर ये दो चीज़ें हैं जो बहुत हद तक नमकीनियत को मुतासिर करते हैं, ये मुतासिर करने वाली अवामिल हैं। तो इसमें 3 शर्तें दी गई हैं कि अम्ल तबख़ीर यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा और मीठा पानी कम शामिल होगा तो ऐसे इलाकों में नमकीनियत ज़्यादा होगी। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पानी भाप बन कर के उड़ जाता है और नमक की मिक़दार बाकी रह जाती है। आप इसका मुशाहिदा करके घरों पर आप देख सकते हैं, एक बर्तन में पानी का घोल, नमक का घोल बनाइए पानी के अंदर और पानी के स्टोव पर रख दीजिए बर्तन को, पानी जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नमक की परत उसमें बाकी रहेगी, नमक भाप के साथ नहीं उड़ता। इसी तरह से उन इलाकों में जहाँ ज़्यादा हरारत होती है, तबख़ीर की शरह ज़्यादा होती है लेकिन नमक की मिक़दार बाकी रहती है समंदर के अंदर, और मीठा पानी अगर कम शामिल होगा बारिश का पानी तो भी नमकीनियत बढ़ जाएगी। दूसरी शर्त है पानी की तबख़ीर का अमल कम, यानी टेम्परेचर कम होगा तो तबख़ीर का अमल कम होगा और मीठे पानी का ज़ख़ीरा ज़्यादा होगा, यानी बारिश का पानी दरियाओं के ज़रिए समंदर में मिलेगा तो वहाँ नमकीनियत कम होगी। जहाँ पानी की तबख़ीर कम और मीठे पानी का ज़ख़ीरा भी कम हो वहाँ नमकीनियत पर कोई असर नहीं पड़ता। आप इसकी मिसाल ले सकते हैं बहिर बंगाल और बहर अरब की। बहर बंगाल में ज़्यादा मीठा पानी शामिल होता है इसलिए वहाँ उसकी नमकीनियत कम है। बहर अरब में मीठा पानी कम शामिल होता है, दरिया कम शामिल होते हैं इसलिए उसकी नमकीनियत ज़्यादा है। आइए हम देखते हैं कौन कौन से इलाक़े हैं जहाँ नमकीनियत ज़्यादा होती है। ख़त इस्तवा से अमूमन 5 दर्जा शुमाल और जुनूब अर्ज़ुल बल्द के दरमियान पुरसकून ख़ित्ते में आसमान ज़्यादा अब्र आलूद होता है, रोज़ाना गर्दिशी यानी अहमाली बारिश होती है। गर्म मरतूब इलाकों में कांगो, अमेज़न दरिया की वादी में बहर आज़म, जहाँ उस इलाकों में जहाँ बहर आज़म है, इसकी वजह से मीठे पानी का ज़ख़ीरा भी ज़्यादा होता है लेकिन ज़्यादा हरारत की वजह से यहाँ नमकीनियत ज़्यादा है। बात इस इलाके की हो रही है, ये ख़त इस्तवा है। ख़त इस्तवा के शुमाल में 5 दर्जा, इसके जुनूब में 5 दर्जा, इसमें अमेज़न की वादी है, दरिया कांगो की वादी है और बहुत सारी इलाक़े हैं। यहाँ पर चूँकि बारिश तो ज़्यादा होती है लेकिन अम्ल तबख़ीर की शरह बहुत ज़्यादा है, हरारत ज़्यादा होती है, सूरज की शुआएँ बिल्कुल सीधी पड़ती हैं इस हिस्से में। तो सूरज की शुआएँ सीधी पड़ने की वजह से इस हिस्से में हरारत ज़्यादा होती है और तबख़ीर की शरह ज़्यादा होने की वजह से नमकीनियत ज़्यादा होती है। आइए इसके दूसरे हिस्सों के बारे में पढ़ते हैं। वस्ती अर्ज़ुल बल्द पट्टों में यानी 25 से 35 डिग्री शुमाल और जुनूब इलाकों में बारिश कम होती है। नदियों में मिलने वाला मीठे पानी का ज़ख़ीरा भी कम होता है बारिश कम होने की वजह से। रेगिस्तानी इलाके भी इस हिस्से में ज़्यादा है इसलिए नमकीनियत ज़्यादा है। यानी आइए वापस नक्शे में देखते हैं। बात चल रही है 25 से 35 दर्जा, यानी जो हम मुंतक़े मुतदला वाले इलाक़े हैं ये हिस्से, इन हिस्सों में, इसी तरह जनूबी निस्फ़ कुर्रे में भी इन हिस्सों में, ये हिस्से जो हैं ये जिनको हम मुंतक़े मुतदला का इलाक़ा कहते हैं, यहाँ पर ख़त इस्तवा से हम जैसे जैसे शुमाल या जनूब में जाएंगे सूरज की शुआएँ तिरछी पड़ेंगी। ये वो इलाके हैं जहाँ बारिश की मिक़दार कम होती है और यहाँ पर रेगिस्तानी इलाके ज़्यादा हैं। रेगिस्तानी इलाके ज़्यादा होने की वजह से, बारिश कम होने की वजह से यहाँ तबख़ीर की शरह कम होती है, मीठा पानी कम शामिल होता है, तो यहाँ पर जो समंदर पाए जाते हैं उनकी नमकीनियत जो है ज़्यादा होती है। और लेकिन हम जैसे जैसे ख़त इस्तवा से शुमाल की तरफ जाएंगे यानी इंतहाई शुमाली और जनूबी हिस्सों में, वहाँ नमकीनियत जो है इंतहाई कम होगी क्योंकि सूरज की शुआएँ एकदम तिरछी पड़ती हैं, पानी टेम्परेचर कम होता है तो तबख़ीर की शरह कम होगी, तो इंतहाई शुमाल और इंतहाई जनूब में नमकीनियत कम होती है। आगे देखिए इसकी तफसील दी गई है। मसावी हरारत के पट्टों में सूरज की किरणें तिरछे पड़ने की वजह से हरारत कम होती है। बर्फ़ पिघलने की वजह से यानी ज़्यादा बुलंद अर्ज़ुल बल्दी इलाकों में बर्फ़ पिघलता है, मीठा पानी शामिल होता है लेकिन अम्ल तबख़ीर की शरह कम होती है, तो ऐसे बुलंद अर्ज़ुल बल्दी इलाकों में नमकीनियत कम हो जाती है। आइए हम एक फैक्ट डेड सी के बारे में दिया गया है, किताब के अंदर भी एक शक्ल दी गई है कि नमकीनियत सबसे ज़्यादा नमकीन समंदर कौन सा है, वो डेड सी है या
बहर मुर्दार है जिसको कहते हैं। ये इसराइल और जॉर्डन की सरहद पर, यानी जॉर्डन, इसराइल और फ़िलिस्तीन ये 3 ममालिक की सरहदों पर वाक़ है। बहर मुर्दार दुनिया का सबसे ज़्यादा नमकीन समंदर है। इसकी नमकीनियत है 332 ग्राम फ़ी हज़ार, यानी दुनिया का जो औसत नमकीनियत है वो 35 फ़ी हज़ार है, 35 फ़ी हज़ार है, लेकिन इसकी नमकीनियत 332 फ़ी हज़ार है। सब बहुत ज़्यादा है। यहाँ कम बारिश, ज़मीन से घिरे हुए समंदर, अम्ल तबख़ीर की शरह ज़्यादा होने की वजह से नमकीनियत ज़्यादा है। नमकीनियत की वजह से समंदरी पानी में हल्कापन होता है, इसको बायोंसी कहते हैं। ज़्यादा नमकीनियत की वजह से जानदार नहीं पाए जाते। नमक के जमाव की वजह से नमक के सतून तैयार हो गए, यानी ये जो हिस्सा है दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा है। ये सी लेवल से भी तकरीबन 400 मीटर से ज़्यादा गहरा है, सी लेवल से भी ज़्यादा गहरा है। और दूसरी ख़ास बात यह है, ये जो बहर मुर्दार है ये चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, यानी इसका पानी बह करके किसी समंदर में शामिल नहीं होता। सिर्फ पानी इसका जो भाप बनकर उड़ता है तबख़ीर के ज़रिए बस, और बाकी पानी बह करके कहीं जाता नहीं। तो चारों तरफ से चूँकि ज़मीन से घिरा हुआ है तो इसमें चारों तरफ से जो पानी में नमकीनियत शामिल होती है और पानी के अंदर नमकीनियत बाकी रहती है, पानी भाप भर के उड़ जाता है। सदियों से ऐसा अमल होता आया है। तो सबसे ज़्यादा नमकीन समंदर है ये। इसकी दूसरी ख़ास बात यह है कि इसमें कोई जानदार नहीं पाया जाता, नमक की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से, और इसकी कशाफत बहुत ज़्यादा है। नमकीनियत ज़्यादा है तो कशाफत बहुत ज़्यादा होगी। कोई शय इसके अंदर डूबती नहीं, कशाफत ज़्यादा होने की वजह से कोई शय इसमें डूबती नहीं, और नमक ज़्यादा होने की वजह से कोई चीज़ इसमें जानदार नहीं पाई जाती। मछलियाँ हैं, आबी नबातात, हैवानात वगैरह, किसी भी तरह की जानदार इसमें नहीं पाया जाता, क्योंकि नमकीनियत बहुत ज़्यादा है। 1000 ग्राम पानी में तकरीबन 332 ग्राम नमक निकलता है। तो दोस्तों, ये बहर मुर्दार की तफसील थी। आइए देखते हैं समंदर की जो दूसरी खूबी है जिसको हम कशाफत कहते हैं। कशाफत क्या है? कशाफत से मुराद, इसको हम इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। फ़ी मकब इकाई में मौजूद जो पानी के अंदर ज़र्रात हैं उनकी मौजूदगी पानी की कशाफत कहलाएगी, जिसको हम फ़ी मकब इकाई में, फ़ी मकब सेंटीमीटर, फ़ी मकब मीटर में ज़ाहिर करते हैं। तो जिस तरह से समंदर की नमकीनियत को हमने देखा कि नमकीनियत मुतासिर होती है मीठे पानी की शमूलियत और सूरज की रोशनी यानी तबख़ीर की शरह के से, इसी तरह से कशाफत भी मुतासिर होती है दर्जे हरारत और नमकीनियत की वजह। सबसे ज़्यादा कशाफत पर नमकीनियत का असर पड़ता है। समुद्री पानी का दर्जे हरारत और नमकीनियत, ये 2 खुसूसियात हैं जो कशाफत को काबू में रखती हैं। यानी पानी गर्म होता है तो उसकी कशाफत कम होती है कि गर्म होकर कोई चीज़ फैलती है, लेकिन पानी का टेम्परेचर अगर कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो पानी कशीफ हो जाएगा। यानी ठंडी में कोई चीज़ सिकुड़ती है और गर्मी पा कर के फैलती है। तो इस तरह टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आइए हम समझते हैं पानी की कशाफत इस डायग्राम के ज़रिए। आपको यहाँ पिछले वीडियो में बताया गया है दर्जे हरारत का, समंदर के पानी के दर्जे हरारत का गहराई के साथ क्या ताल्लुक़ है। सतह का दर्जे हरारत ज़्यादा होता है, लेकिन गहराई 1000 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो ये दर्जे हरारत 4 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। इसी तरह से कशाफत है समंदर के पानी का, ऊपरी हिस्सों में तो कशाफत ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे 1000 मीटर तक की कशाफत बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे पानी का टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा। हमने बताया अभी, टेम्परेचर अगर कम होगा तो कशाफत ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कशाफत कम होगी। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा था, यानी इस हिस्से में टेम्परेचर कितना है, तकरीबन 20 से 24 डिग्री सेल्सियस है, तो कशाफत कम है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा कशाफत बढ़ती जा रही है। 1000 मीटर की गहराई के बाद कशाफत जो है कांस्टेंट हो जाती है। वजह इसकी क्या? क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1000 मीटर की गहराई के नीचे
या 2000 मीटर की गहराई के नीचे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट हो जाता है। उससे कम समंदर के पानी का टेम्परेचर कम नहीं होता। इसलिए इस गहराई पर जो है हमारी डेंसिटी यानी पानी की कशाफत भी जो है कांस्टेंट हो जाती है, उससे कम नहीं होती। अब यहाँ बिल्कुल लकीर एकदम सीधी जा रही है यहाँ से, यानी कम ज़्यादा कशाफत नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ तक जो है टेम्परेचर में तब्दीली हुई थी, इसलिए यहाँ पर कशाफत में भी तब्दीली हुई है। यही तलबा, ये पानी की कशाफत, समंदर की कशाफत जो है इस नक्शे के ज़रिए हम देखेंगे। यहाँ देखिए कशाफत को सरफेस वाटर की कशाफत बताई गई है, समंदर के पानी की सतह की कशाफत बताई गई है। समंदर के पानी की सतह की कशाफत बताई गई है। यहाँ आप देखिए अलग अलग कलर से समंदरों की कशाफत बताई गई है। सबसे ज़्यादा जो कशीफ़ इलाक़े हैं वो इस हिस्से में आप देख रहे हैं। इस हिस्से में जो लाल रंग से दिखाई दे रहा है, यानी क़ुतबी इलाक़ों के करीब, एक इंतहाई जुनूब में, इसी तरह इंतहाई शुमाल में यहाँ लाल रंग दिखाई दे रहा है आपको। ज़्यादा कशाफत है समंदर के पानी की। उसकी कशाफत 1027 और 1028 फ़ी मकब किलोग्राम फ़ी मकब मीटर, किलोग्राम फ़ी मकब मीटर में बताया गया है। किलोग्राम फ़ी 1028 किलोग्राम फ़ी मकब मीटर। इसी तरह से सबसे कम जो कशाफत बताई गई है आप देख रहे हैं, इस हिस्से में ब्लू कलर से सबसे कम कशाफत बताई गई है। यहाँ पर 1022 है, 1020 है। इस दरमियानी हिस्सों में, इस हिस्से में वजह इसकी कि यहाँ पर बारिश बहुत होती है, मीठा पानी बहुत शामिल होता है समंदर के अंदर, इसलिए उसकी कशाफत कम है। लेकिन जैसे जैसे हम जुनूब या शुमाल की तरफ जाएंगे, ये कशाफत आप देख रही है बढ़ती जा रही है। 1023-24 हो गई है। अब उसके नीचे जुनूब में आएंगे या शुमाल में जाएंगे, कशाफत बढ़ती जा रही है, यानी वस्ती अर्जुल बल्दी इलाक़ों में। लेकिन जब एकदम इंतहाई शुमाल में और इंतहाई जुनूब में जाएंगे, शुमाल और जुनूब में, तो वहाँ कशाफत सबसे ज़्यादा 1028 किलोग्राम फ़ी मकब मीटर है, क्योंकि सूरज की शुआएँ यहाँ तिरछी होती जाती हैं। यानी आप यूँ समझिए कि ये ख़ते इस्तवा है। ख़ते इस्तवा के शुमाल में हम जैसे जाएंगे और जुनूब में जाएंगे तो यहाँ हरारत कम होती जाएगी, तो पानी की कशाफत बढ़ती जाएगी जुनूब या शुमाल में, और दरमियानी हिस्सों में कशाफत पानी की कम होगी। कशाफत को किलोग्राम फ़ी मकब मीटर में दिखाया गया है। अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप इस सबक को पढ़ कर के बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। समंदर की नमकीनियत और कशाफत को इस वीडियो में बताया गया है। इसके पहले हरारत को पहले वीडियो में बताया गया था। जज़ाकल्लाह देखने के लिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये छठा सबक का दूसरा हिस्सा था, सैलिनिटी और डेंसिटी ऑफ ओशन। आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।